بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب نسیم ہدایت کے جھونکے، جلد اول تا چہارم، پارٹ نمبر 4، پیج نمبر 96۔ چودھری صاحب کو مسجد میں لے جانے لگے تو یوگیندر نے پوچھا، پتا جی کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا مسلمان بنتے۔ تو یوگیندر نے کہا مجھے آپ سے پہلے مسلمان بننا ہے، اور مجھے تو بابری مسجد دوبارہ ضرور بنوانی ہے۔ خوشی خوشی ان دونوں کو وضو کروایا، کلمہ پڑھوایا گیا۔ والد صاحب کا محمد عثمان اور بیٹے کا محمد عمر نام رکھا گیا۔ خوشی خوشی وہ دونوں اپنے گاؤں پہنچے۔ وہاں پر ایک چھوٹی سی مسجد ہے، اس کے امام صاحب سے جا کر ملے۔ امام صاحب نے مسلمانوں کو بتا دیا، بات پورے علاقہ میں پھیل گئی۔ ہندوؤں تک بات پہنچی تو قوت دار لوگوں کی میٹنگ ہوئی اور طے کیا کہ ان دونوں کو رات میں قتل کروایا جائے، ورنہ نہ جانے کتنے لوگوں کا دھرم خراب کریں گے۔ اس میٹنگ میں ایک مرتد بھی شریک تھا، اس نے امام صاحب کو بتا دیا۔ اللہ نے خیر کی، ان دونوں کو راتوں رات گاؤں سے نکالا گیا، پھلت گئے اور بعد میں جماعت میں 40 دن کے لیے چلے گئے۔ یوگیندر نے پھر امیر صاحب کے مشورہ سے 3 چلے لگائے۔ بعد میں ان کی والدہ بھی مسلمان ہو گئی۔ محمد عمر کی شادی دہلی میں ایک اچھے مسلمان گھرانے میں ہو گئی اور وہ سب لوگ خوشی خوشی دہلی میں رہ رہے ہیں۔ گاؤں کا مکان اور زمین وغیرہ بیچ کر دہلی میں ایک کارخانہ لگا لیا ہے۔ سوال: ماسٹر صاحب، آپ سے میں نے آپ کے اسلام قبول کرنے کے بارے میں سوال کیا تھا۔ آپ نے یوگیندر اور ان کے خاندان کی داستان سنائی۔ واقعی یہ خود عجیب و غریب کہانی ہے، مگر مجھے تو آپ کے قبول اسلام کے بارے میں معلوم کرنا ہے۔ جواب: پیارے بھائی، اصل میں میرے قبول اسلام کو اس کہانی سے الگ کرنا ممکن نہیں، اس لیے میں نے اس کا پہلا حصہ سنایا۔ اب آگے دوسرا حصہ سن لیجئے۔ 9 مارچ 1993 کو اچانک میرے والد کا ہارٹ فیل ہو کر انتقال ہو گیا۔ ان پر بابری مسجد کی شہادت اور اس میں میری شرکت کا بڑا غم تھا۔ وہ میری ممی سے کہتے تھے کہ مالک نے ہمیں مسلمانوں میں پیدا کیوں نہیں کیا؟ اگر ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوتے، کم از کم ظلم سہنے والوں میں ہمارا نام آتا۔ ظلم کرنے والی قوم میں ہمیں کیوں پیدا کر دیا؟ انہوں نے گھر والوں کو وصیت کی تھی کہ میری ارتھی پر بلبیر نہ آنے پائے، میری ارتھی کو یا تو مٹی میں دبانا یا پانی میں بہا دینا، ظالم قوم کے رواج کے مطابق آگ مت لگانا، بلکہ ہندوؤں کے شمشان میں بھی نہ لے جانا۔ گھر والوں نے ان کی خواہش کے مطابق عمل کیا اور 8 دن بعد مجھے ان کے انتقال کی خبر ہوئی۔ میرا دل بہت ٹوٹا۔ ان کے انتقال کے بعد بابری مسجد کا گرانا مجھے ظلم لگنے لگا اور مجھے اس پر فخر کے بجائے افسوس ہونے لگا اور میرا دل بجھ سا گیا۔ میں گھر کو جاتا تو میری ممی میرے والد کے غم کو یاد کر کے رونے لگتی اور کہتی کہ ایسے دیوتا باپ کو تو نے ستا کر مار دیا، تو کیسا نیچ انسان ہے۔ میں نے گھر جانا بند کر دیا۔ جون میں محمد عمر جماعت سے واپس آیا تو پانی پت میرے پاس آیا اور اپنی پوری کہانی بتائی۔ 2 مہینہ سے میرا دل ہر وقت خوف زدہ سا رہتا تھا، کوئی آسمانی آفت مجھ پر نہ آ جائے۔ والد کا دکھ اور بابری مسجد کی شہادت دونوں کی وجہ سے ہر وقت دل سہما سہما رہتا تھا۔ محمد عمر کی کہانی سن کر میں اور بھی پریشان سا ہوا۔ عمر بھائی نے مجھ پر زور دیا کہ 23 جون کو سونی پت میں مولانا صاحب آنے والے ہیں، آپ ان سے ضرور ملیں، اور اچھا ہے کچھ دن ان کے ساتھ رہیں۔ میں نے پروگرام بنایا، مجھے پہنچنے میں دیر ہو گئی۔ عمر بھائی پہلے پہنچ گئے تھے اور مولانا صاحب سے میرے بارے میں پورا حال بتا دیا تھا۔ میں گیا تو مولانا صاحب بڑی محبت سے ملے اور مجھ سے کہا کہ آپ کی تحریک پر اس گناہ کو کرنے والے یوگیندر کے ساتھ مالک یہ معاملہ کر سکتے ہیں، تو آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آ سکتا ہے، اور اگر اس دنیا میں بھی وہ مالک سزا نہ دے تو مرنے کے بعد ہمیشہ کے جیون میں جو سزا ملے گی آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ 1 گھنٹہ ساتھ رہنے کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا کہ اگر مجھے آسمانی آفت سے بچنا ہے تو مسلمان ہو جانا چاہیے۔ مولانا صاحب 2 روز کے سفر پر جا رہے تھے۔ میں نے 2 روز ساتھ رہنے کی خواہش کا اظہار کیا تو انہوں نے خوشی سے قبول کیا۔ 1 روز ہریانہ، پھر دہلی اور خورجہ کا سفر تھا۔ 2 روز کے بعد پھلت پہنچے۔ 2 روز کے بعد میں دل سے اسلام کے لیے آمادہ ہو چکا تھا۔ میں نے عمر بھائی سے اپنا خیال ظاہر کیا تو انہوں نے خوشی خوشی مولانا صاحب سے بتایا اور الحمدللہ میں نے 25 جون 1993 ظہر کے بعد اسلام قبول کیا۔ مولانا صاحب نے میرا نام محمد عامر رکھا۔ اسلام کے مطالعہ اور نماز وغیرہ یاد کرنے کے لیے مجھے پھلت رہنے کا مشورہ دیا۔ میں نے اپنی بیوی اور چھوٹے بچوں کی مجبوری کا ذکر کیا تو میرے لیے مکان کا نظم کر دیا گیا۔ میں چند ماہ پھلت آ کر رہا اور اپنی بیوی پر کام کرتا رہا۔ 3 مہینے کے بعد وہ بھی مسلمان ہو گئی، الحمدللہ۔ سوال: آپ کی والدہ کا کیا ہوا؟ جواب: میں نے اپنی ماں سے اپنے مسلمان ہونے کے بارے میں بتایا، وہ بہت خوش ہوئی اور بولی کہ تیرے پتا کو اس سے شانتی ملے گی، وہ بھی اسی سال مسلمان ہو گئی۔ سوال: آج کل آپ کیا کر رہے ہیں؟ جواب: آج کل میں ایک جونیئر ہائی اسکول چلا رہا ہوں جس میں اسلامی تعلیم کے ساتھ انگریزی میڈیم میں تعلیم کا نظم ہے۔ سوال: ابھی بتا رہے تھے کہ ہریانہ، پنجاب وغیرہ کی غیر آباد مسجدوں کو آباد کرنے کی بڑی کوششیں آپ کر رہے ہیں۔ جواب: میں نے عمر بھائی سے مل کر یہ پروگرام بنایا کہ اللہ کے گھر کو شہید کرنے کے بعد اس بڑے گناہ کی تلافی کے لیے ہم ان ویران مسجدوں کو آباد کرنے اور
कुछ नई मस्जिदें बनाने का बेड़ा उठाएं। हम दोनों ने तय किया कि काम तकसीम कर लें। मैं तो वीरान मस्जिदों को आबाद कराऊं और उमर भाई नई मस्जिदें बनाने की कोशिश करें और एक दूसरे का ताउन करें। हम दोनों ने जिंदगी में 100 मस्जिदें बनाने और वागुजार कराने का प्रोग्राम बनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह 6 दिसंबर 2004 तक 13 वैरान और मकबूजा मस्जिदें हरियाणा, पंजाब और दिल्ली और मेरठ कैंट में वागुजार करके ये पापी आबाद करा चुका है। जुलाई 2009 तक 67 मस्जिदें वागुजार और 37 नई मस्जिदें बना चुके हैं। उमर भाई मुझसे आगे निकल गए और वो अब तक 20 मस्जिदें नई बनवा चुके हैं और 21वीं की बुनियाद रखी है। हम लोगों ने यह भी तय किया है कि बाबरी मस्जिद की शहादत की हर बरसी पर 6 दिसंबर को एक वैरान मस्जिद में नमाज शुरू करानी है और उमर भाई को नई मस्जिद की बुनियाद जरूर रखनी है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई साल नागा नहीं हुआ, अलबत्ता 100 का निशाना अभी बहुत दूर है। इस साल उम्मीद है तादाद बहुत बढ़ जाएगी। 8 मस्जिदों की बात चल रही है, उम्मीद है वो आइंदा चंद माह में जरूर आबाद हो जाएंगी। उमर भाई तो मुझसे बहुत आगे पहले ही हैं। दरअसल में हमारा काम भी उन्हीं के हिस्सा में है। मुझे अंधेरे से निकालने का जरिया वही बने। सवाल, आपके खानदान वालों का क्या ख्याल है? जवाब, मेरी वालदा के अलावा सिर्फ एक बड़े भाई हैं। हमारी भाभी का 4 साल पहले इंतकाल हो गया। उनकी शादी मुझसे बहुत बाद में हुई थी। उनके 4 छोटे छोटे बच्चे हैं। एक बच्चा माजूर सा है। हमारी भाभी बड़ी भली औरत थी। भाई साहब के साथ मिसाली बीवी बनकर रही। इनके इंतकाल के बाद भाई बिल्कुल टूट से गए थे। मेरी बीवी ने भाभी के मरने के बाद उन बच्चों की बड़ी खिदमत की। मेरे बड़े भाई खुद बहुत शरीफ आदमी थे। वो मेरी बीवी की इस खिदमत से बहुत मुतासर हुए। मैंने उनको इस्लाम की दावत दी, मगर मेरी वजह से, मेरे वालिद के सदमा की वजह से वो मुझे कुछ अच्छा आदमी नहीं समझते थे। मैंने अपनी बीवी से मशवरा किया, मेरे बच्चे बड़े हैं और भाई मुश्किल से जी रहे हैं। अगर मैं तुम्हें तलाक दे दूं और इद्दत के बाद भाई तैयार हो जाएं कि वो मुसलमान होकर तुमसे शादी कर लें तो दोनों के लिए निजात का जरिया बन सकता है। वो पहले तो बहुत बुरा मानी, मगर जब मैंने उसको दिल से समझाने की कोशिश की तो वो राजी हो गई। मैंने भाई को समझाया, उन बच्चों की ज़िंदगी के लिए अगर आप मुसलमान हो जाए और मेरी बीवी से शादी कर लें तो इसमें क्या हर्ज है, और कोई औरत ऐसी मिलना मुश्किल है जो माँ की तरह इन बच्चों की परवरिश कर सके। वो भी शुरू में तो बहुत बुरा माने कि लोग क्या कहेंगे। मैंने कहा, अकल से जो बात सही है उसके मानने में क्या हर्ज है। बाहम मशवरा हो गया। मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी और इद्दत गुजार कर भाई को कलमा पढ़वाया और उनसे उसका निकाह कराया। अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेरे और उनके बच्चे इनके साथ रहते हैं। सवाल, आप अकेले रहते हैं? जवाब, हजरत मौलाना के मशवरे से मैंने एक नौ मुस्लिम औरत जो काफ़ी मुअम्मर है शादी कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह खुशी खुशी हम दोनों भी रह रहे हैं। सवाल, क़ारीन अरमगान के लिए कुछ पैगाम आप देना चाहेंगे? जवाब, मेरी हर मुसलमान से दरख्वास्त है कि अपने मकसद ज़िंदगी को पहचाने और इस्लाम को इंसानियत की अमानत समझकर इसको पहुंचाने की फिक्र करें। महज इस्लाम दुश्मनी की वजह से इससे बदला का जज्बा ना रखें। अहमद भाई, मैं ये बात बिल्कुल अपने ज़ाती तजुर्बा से कह रहा हूँ कि बाबरी मस्जिद की शहादत में शरीक हर एक शिव सैंक, बजरंग दिली और हर हिंदू को अगर ये मालूम होता कि इस्लाम क्या है, मुसलमान किसे कहते हैं, कुरान क्या है और मस्जिद क्या चीज़ है, तो इनमें से हर एक मस्जिद बनाने की तो सोच सकता है। मस्जिद गिराने का तो सवाल ही नहीं हो सकता। मैं यकीन से ये कह सकता हूँ कि बाल ठाकुरे जी, वनय कटियार, उमा भारती और अशफक सिंघल जैसे सरकर्दा लोगों को भी अगर इस्लाम की हकीकत मालूम हो जाए और ये मालूम हो जाए कि इस्लाम हमारा मजहब भी है, हमारे लिए भी ज़रूरी है, तो इनमें से हर एक अपने खर्च से बाबरी मस्जिद दोबारा ताबीर करने को सादत समझेगा। अहमद भाई, चलिए, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो मुसलमान की दुश्मनी के लिए मशहूर है, मगर 1 अरब हिंदुओं में ऐसे लोग 1 लाख भी नहीं होंगे। 1 लाख भी, सच्ची बात यह है कि मैं शायद ज्यादा बता रहा हूँ। 99 करोड़ 99 लाख तो मेरे वालिद की तरह हैं जो इंसानियत दोस्त बल्कि इस्लामी उसूलों को दिल से पसंद करते हैं। अहमद भाई, मेरे वालिद रोते हुए क्या फितरतन मुसलमान नहीं थे, मगर मुसलमानों की दावत ना देने की वजह से वो कुफ्र पर मर गए। मेरे साथ और मेरे वालिद के साथ मुसलमानों का कितना बड़ा जुल्म है। ये बात सच्ची है कि बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले मुझसे ज्यादा जालिम कौन हो सकता है, मगर मुझसे बहुत ज्यादा जालिम तो वो मुसलमान है जिनकी दावत से गफलत की वजह से मेरे ऐसे प्यारे बाप दोजख में चले गए। मौलाना साहब सच कहते हैं, हम शहीद करने वाले भी ना जानने और मुसलमानों के ना पहचानने की वजह से हुए। हमने अनजाने में ऐसा जुल्म किया और मुसलमान जानबूझकर इनको दोजख में जाने का जरिया बन रहे हैं। मुझे जब अपने वालिद के कुफ्र पर मौत के आने का ख्याल होता है तो मेरी नींद उड़ जाती है। हफ्तों हफ्तों नींद नहीं आती, नींद की गोलियां खानी पड़ती हैं। काश मुसलमानों को इस दर्द का एहसास हो। सवाल, बहुत बहुत शुक्रिया, माशाअल्लाह, आपकी ज़िंदगी अल्लाह की सिफत हादी और इस्लाम की हकानियत की खुली निशानी है। जवाब, बिलाशुबा अहमद भाई, इसलिए मेरी ख्वाहिश थी कि अरमगान में ये छपे। अल्लाह ताला इसकी इशाअत को मुसलमानों के लिए इनकी आंखें खोलने का जरिया बनाए, आमीन। अच्छा, अल्लाह हाफिज। मुस्तफ़ा अजमानामा, अरमगान, जून 2005।
طیب بھائی رام ویر سے ایک ملاقات۔ احمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طیب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ماہنامہ ارمغان میں نو مسلموں کے انٹرویوز کا سلسلہ کئی سال سے چل رہا ہے، جس کے لیے میں نے آپ کو یہ زحمت دی ہے۔ آپ سے انٹرویو لینے کے بارے میں ابھی سے کافی روز سے بات چیت چل رہی تھی اور آپ کو ابھی سے کوئی کام بھی تھا، اس لیے میں نے آپ کو سونی پت سے بلایا ہے کہ آپ کا کام بھی ہو جائے اور میں انٹرویو بھی لے لوں گا۔ جواب: ہاں، حضرت نے مجھ سے 3-4 مہینے پہلے انٹرویو کے بارے میں کہا تھا۔ سوال: آپ خیریت سے ہیں؟ جواب: الحمدللہ میں بخیر ہوں۔ سوال: آپ اپنا تعارف کرائیں۔ جواب: میرا پورا نام رام ویر بن عجب سنگھ تھا۔ ہم 7 بہن بھائی تھے، 2 کا انتقال ہو گیا، اب 3 بھائی اور 2 بہنیں بچی ہیں۔ میں کاکڑا ضلع مظفر نگر کا رہنے والا ہوں اور انٹر کالج شاہپور سے میں نے ہائی اسکول کیا ہے۔ میرے والد ایک شریف اور بھلے کسان ہیں، مگر ہمارا خاندان بہت دھارمک خاندان ہندو ہے۔ ہندو جاٹ برادری سے میرا تعلق ہے۔ سوال: اپنے قبول اسلام کے بارے میں بتائیں۔ جواب: میرے اسلام قبول کرنے کا بھی عجیب اتفاق ہے، میرے ذہن میں تو اسلام قبول کرنے کی کوئی بات ہی نہیں تھی، اور پڑھائی چھوڑنے اور بیوی کو طلاق دینے کے بعد زندگی بالکل خراب ہو گئی تھی۔ ہر وقت جنگل میں رہنے اور لوگوں کو پریشان کرنے اور نشہ کرنے کا تو میں عادی ہو چکا تھا۔ میرا تعلق علاقے کے بدماشوں سے ہو گیا تھا اور میں جانور سپلائی کرنے والوں کے راستے میں روک کر پیسے چھین کر زندگی بسر کرتا تھا۔ گھر اور محلہ والے مجھ سے بہت پریشان تھے۔ گھر والوں نے عاجز آ کر مجھے گھر سے نکل جانے کو کہا، مگر میں نے گھر سے نکلنے سے منع کر دیا اور ٹیوب ویل لگا کر کھیتی کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہمارے کھیت کے برابر میں ایک انصاری ہیں، ان کی پرانی ٹیوب ویل بند پڑی تھی۔ میں نے اس کو صحیح کرنے میں رات دن محنت کی، بالآخر وہ صحیح ہو گئی۔ میں نے موٹر اور پنکھا ادھار دیے اور چوری سے لائٹ کے کنیکشن کر لیے، لیکن ٹیوب ویل نے پانی نہیں اٹھایا۔ میں نے اسے چلانے کی بہت کوشش کی، ٹریکٹر سے بھی پمپ چلوایا، لیکن میں کامیاب نہ ہو سکا۔ بالآخر میں پنڈت کے پاس پہنچا، اس نے ٹیوب ویل پر چڑھاوا چڑھانے کو کہا۔ میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ آخر میرے دل میں یہ آیا کہ دیوتا بھنگ سے خوش ہوتے ہیں۔ میں نے بھنگ مسل کر اس پر چڑھا دی، پھر بھی پانی نہیں آیا۔ ایک مرتبہ رات میں برابر کے کھیت والے انصاری یاسین بھی میرے پاس ہی تھے۔ ہم دونوں ٹیوب ویل کے پاس مٹی پر ہی لیٹے ہوئے تھے، تو یاسین کہنے لگے کہ اگر آج اس نے پانی اٹھایا تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا۔ میں نے کہا تم 2 کی بات کرتے ہو، میں 4 پڑھوں گا۔ اکثر رات کو 10:30 بجے بجلی آ جاتی تھی، لیکن اس رات کو 12:45 پر لائٹ آئی۔ میں نے یاسین سے کنیکشن کرنے کو کہا، وہ کہنے لگے کہ تم ہی کر لو، مجھے تو بجلی سے ڈر لگتا ہے۔ میرے کنیکشن کرتے ہی ٹیوب ویل نے تقریباً 2.5 میٹر دور پانی پھینکنا شروع کر دیا اور ٹیوب ویل کے سامنے والی سڑک پر پانی گرنے لگا۔ احمد بھائی تعجب سے کہتے ہوئے، سوکھی مٹی ہونے کے باوجود پانی کی دھار کی رفتار سے سڑک میں تقریباً 1.5 میٹر گڑھا ہو گیا۔ صبح جب محلے والوں نے دیکھا کہ یہ کامیاب ہو گیا ہے تو وہ سب جمع ہو کر آئے اور ٹیوب ویل بند کرا دی۔ کہنے لگے کہ اس لائٹ سے ہم تمہاری ٹیوب ویل نہیں چلنے دیں گے، اپنی لائٹ منظور کراؤ۔ ٹیوب ویل بند ہونے کے بعد یاسین نماز کے لیے کہنے لگے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم نے 4 رکعت پڑھنے کا نیم نظر کیا تھا، اب تمہیں پڑھنی چاہیے، کبھی ٹیوب ویل بھی پھر خراب ہو جائے۔ میں نے کہا چلو پڑھتے ہیں۔ ہم کبیر پور کھیت کے قریب ایک گاؤں کی مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے تھے کہ یاسین نے کہا اپنی ٹیوب ویل میں وضو کریں گے۔ ہم وہاں آئے، یاسین نے وضو کیا اور مجھے اچھی طرح غسل کرایا۔ اس کے بعد ہم نے نماز ادا کی۔ نماز کے بعد یاسین کہنے لگے کہ تم مسلمان ہو جاؤ، ہم تمہاری بجلی بھی منظور کرا دیں گے۔ میں نے کہا مجھ سے مسلمان بھی پریشان ہیں، وہ مجھے کہاں رکھ لیں گے؟ یاسین نے کہا کہ جب تم مسلمان ہو جاؤ گے تو تم ٹھیک ہو جاؤ گے، اور اگر تم ٹھیک بھی نہ ہوگے تب بھی مسلمان تمہیں رکھ لیں گے، اور مسلمان نہ بھی رکھیں تو مرنے کے بعد خدا تمہیں جنت میں رکھے گا۔ میں نے یاسین سے کہا کہ تم مجھے ہر سولی مدرسہ میں لے چلو، میں وہاں یہ معلوم کروں گا کہ مسلمان ہو جاؤں یا نہیں۔ ہم دونوں وہاں پہنچے، مولانا انیس صاحب سے ملاقات ہوئی، ان سے میں نے مسلمان ہونے کے بارے میں معلوم کیا۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان ایسے نہیں بنتے، بلکہ جماعت میں جا کر نماز وغیرہ سیکھنی ہوگی، تم چلا لگاؤ اور دلی مرکز چلے جاؤ۔ میں نے ان سے کہا مجھے تو کچھ معلوم نہیں، تم ہی بھیج دو۔ انہوں نے مظفر نگر مرکز میں فون پر بات کی اور مظفر نگر جانے کو کہا۔ اس وقت میں تیار نہیں تھا، اس لیے میں نے اگلے دن جانے کا وعدہ کر لیا۔ جانے سے پہلے میں نے اپنی ماں کو بتایا کہ گھر والے مجھ سے بہت پریشان ہیں، اس لیے میں تو جا رہا ہوں اور مسلمان ہو جاؤں گا۔ اس نے کہا اچھا چلے جانا، لیکن کھانا تو کھا لے۔ میں کھانا کھا کر 2 گلاس دودھ پی کر راستے میں ایک شخص سے 700 روپے لے کر مظفر نگر پہنچا، جہاں مرکز میں مولانا موسیٰ صاحب سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں تو کوئی جماعت نہیں جا رہی ہے، تم پھلت چلے جاؤ، پھلت سے بھی جماعت جاتی ہے۔ میں پھلت چلا گیا، وہاں ابا الیاس سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے شام کو حضرت سے ملوایا، حضرت نے کلمہ پڑھوایا، پھر میری زندگی کے حالات معلوم کیے۔ جب انہوں نے میرے حالات سنے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایمان و اسلام اصل میں ایمان و سلامتی میں خود رہنے اور اپنے سے دوسروں کو امن و سلامتی میں رکھنے کا نام ہے، اس لیے اب تم مسلمان ہو گئے ہو، تم اگر یہ چاہتے ہو کہ خود بھی امن و سلامتی میں رہو اور اس دنیا کے بعد ہمیشہ کی زندگی میں بھی سکون و چین اور امن و سلامتی میں رہو، تو ضروری ہے کہ تم اس طرح زندگی گزارو کہ تم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہر آدمی کے لیے امن اور سلامتی کا ذریعہ بنو۔ اس کے لیے سب سے پہلے تمہیں نشہ سے سچی توبہ کرنی ہوگی، اس لیے کہ سب سے زیادہ آدمی نشہ کی حالت میں لوگوں کو ستاتا ہے۔ حضرت نے مجھ سے کہا کہ تم چودھری آدمی ہو، چودھری لوگ بڑے بہادر ہوتے ہیں،
ایک जवान अगर किसी बात का पक्का इरादा कर ले तो पहाड़ से दूध की नहर खोद निकाल सकता है। एक जवान मर्द अगर पक्का इरादा करे तो नशा छोड़ना कोई मुश्किल काम नहीं। मौलाना साहब ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, पक्का इरादा करो, मुझसे वादा करो कि अब किसी तरह का नशा ना करोगे। अब तो ईमान वाले हो, मुसलमान हो गए हो, अब तो नशा बहुत बड़ा जुर्म है। मैंने मौलाना साहब से वादा किया, अहमद भाई, नशा की मुझे इतनी आदत हो गई थी कि मैं सोचता था कि यह आदत मेरे जीवन के साथ ही जाएगी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मुझ में नशा छोड़ने की इरादा की भी हिम्मत हो जाएगी। मगर हजरत के सामने जब मैंने वादा किया तो मुझे ये नशा छोड़ना बिल्कुल आसान काम लगा। शायद ये मेरे ईमान की बरकत थी। मेरे अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी और इस तजुर्बे ने ना सिर्फ मुझे बहुत सी बुराइयों से बचाया, बल्कि मेरे दिल में ये बात बैठ गई कि अल्लाह ताला ने इंसान को बड़ी हिम्मत दी है। पक्का इरादा करके इंसान हर बड़े से बड़ा काम कर सकता है। इस यकीन के साथ मैंने ना जाने कितने लोगों से नशा और बीड़ी, सिगरेट और गुटखा छुड़ा दिया। 5-6 लोगों से जुआ और सट्टा छुड़वाया। 2 लोगों से औरतों के नाजायज ताल्लुकात छुड़वाए। बस मेरे अल्लाह का करम है, मौलाना साहब ने मेरठ भेज कर मेरा सर्टिफिकेट बनवाया। इत्तेफाक से अगले दिन फुल्त से जमात जानी थी। मैं उनके साथ चला गया। वहाँ नमाज वगैरह सीखी, फिर चिल्ला पूरा करने के बाद फुल्त वापस आ गया। हजरत से मुलाकात हुई। हजरत ने पूछा, ये जिंदगी अच्छी है या इस्लाम से पहले की जिंदगी? मैंने बताया कि हजरत, मुझे तो बहुत सुकून मिला है। इन 40 दिनों में नशा तो दूर की बात, कोई नशा करने वाला भी करीब से नहीं गुजरा और मेरी सेहत भी अच्छी हो गई है। मुझे तो ये जिंदगी बहुत अच्छी लगी। हजरत ने पूछा, अब कहाँ रहना चाहोगे? मैंने कहा, आप जहाँ कहेंगे। उन्होंने मेरी तालीम के बारे में मालूम किया। मैंने बता दिया। हजरत ने पूछा, पढ़ा सकते हो? मैंने कहा, छोटे बच्चों को पढ़ा सकता हूँ। हजरत ने मुझे सोनीपत भेज दिया। 1 साल बाद सकूती में मेरी शादी हो गई। मेरी शादी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दीनदार और पढ़ी लिखी नेक लड़की से हुई। वो लोग सकूती टांडा के रहने वाले हैं। सकूती टांडा में हमारे हिंदू रिश्तेदार बहुत से रहते हैं। इस ख्याल से कि कहीं वो कोई फितना फसाद ना करें, हजरत मेरी शादी का प्रोग्राम खतौली में मेरे साडू के घर से बनाया। वो लोग लड़की को लेकर खतौली आ गए। हजरत 2-3 लोगों के साथ मुझे लेकर खतौली गए और अल्हम्दुलिल्लाह सादगी से सुन्नत के मुताबिक निकाह और रुखसती हुई। मेरे वालिद भी मेरे साथ मेरे निकाह में शरीक थे। वो बहुत खुश थे। हजरत मौलाना कलीम साहब का बार बार शुक्रिया करते थे और कहते थे कि आपने मेरे लड़के को सुधार दिया। इससे पूरा इलाका परेशान था और हम सब लोग आजिज थे। फुल रुखसती हुई तो मेरी वालदा भी आ गई। मेरी अहलिया से मिलकर खुशी से रोई और बार बार माथा चूमती थीं कि कैसी सोनी बहू मेरे मालिक ने मुझे दी है। मेरी अहलिया ने भी 2 रोज की शादी के बावजूद मेरी वालदा की खूब खिदमत की। इब्तदा अच्छे घराना में शादी की वजह से मुझे मजबूती मिली और मुझे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को इस्लाम की दावत देने में बड़ी कुव्वत मिली। मेरे वालिद साहब को जब मालूम हुआ कि मौलाना साहब ने सकूती में हमारा रिश्तेदारों के फितना करने के डर से खतौली लड़की बुलाकर शादी की है, तो उन्होंने मौलाना साहब से कहा, मौलाना साहब, आप मुझे पहले खबर करते, हम किसी के घेर में नहीं रहते। इन बेचारों को बेघर किया, खुद बारात लेकर सकूती जाता। मेरे बेटे ने कोई जुर्म तो नहीं किया, मुसलमान हो गया तो अच्छा ही किया है। क्या था, क्या हो गया, मैं 7 जन्म तक आपका एहसान नहीं उतार सकता। मेरे गांव वालों ने इसके मुसलमान होने के बाद पंचायत की कि तेरा बेटा अधर्म हो गया है, इस पर सख्ती करो। तो मैंने साफ कह दिया, वो धर्म नहीं बल्कि धार मुक्त मजहब ही हो गया है। धर्म अपना अपना मामला है। मैं आप में से किसी का दिया नहीं खाता। अगर ज्यादा करोगे तो खेत और घर बेच कर मैं भी परसों ही जा रहा हूँ और बेटे के साथ मैं भी मुसलमान हो जाऊंगा। जब ऐसे हो तो बिगड़े हुए को मुसलमान ने ऐसा सुधार दिया तो मुझ में भी सुधार आ जाएगा। कुछ लोग जरा गुस्सा में गालियां देने लगे तो मैं पंचायत से चला आया और मैंने कहा, अभी एसपी के यहाँ जाकर रपट लिखवाऊंगा। कुछ लोगों ने मुझे रोका और फिर मीठी बातें करने लगे। हम तेरी भलाई में पंचायत कर रहे हैं, आदमी में हिम्मत होना चाहिए। मैं जब अपने गांव वालों से नहीं डरा तो फिर सकूती वालों का क्या डर था? हजरत ने फरमाया, डरते तो हम भी नहीं, मगर शादी में कोई बात होती तो बदमज़गी आ जाती। और अब मैं अपनी बीवी के साथ सोनीपत में रह रहा हूँ। मेरे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं। सब लोग 5 वक्त के नमाजी हैं, मेरी इज्जत करते हैं। मुझे इन सब से बहुत प्यार मिला। वो सब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। असल में जब सोनीपत आया तो मदरसा वालों ने मेरे लिए एक किराए के मकान का ईदगाह कॉलोनी में इंतजाम कर दिया। सबको मालूम था कि मैंने 2 महीने पहले इस्लाम कबूल किया है। मुझे नमाज की पाबंदी और तस्बीह वगैरह पढ़ते देखकर लोगों को शर्म आती। मैंने अपनी अहलिया से औरतों में तालीम शुरू कराई। मैं गश्त वगैरह भी पाबंदी से कराता था। रफ्ता रफ्ता पड़ोसी नमाज पढ़ने लगे। बहुत से बच्चे में मैंने मदरसे में दाखिल कराया। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग नमाज की पाबंदी करने लगे। वो लोग मेरा बहुत एहतराम करते हैं। मेरे मोहल्ला और मदरसा वाले जिस तरह मुझे प्यार करते हैं, मैंने अपने घर वालों से भी ऐसा प्यार नहीं पाया। ये महज मेरे अल्लाह का करम है और मेरे ईमान का सदका है। सवाल, इस्लाम कबूल करने के बाद आपको किसी किस्म की परेशानी से दो चार होना पड़ा? जवाब, अहमद भाई, मेरे हजरत ने मुझे कलमा पढ़ाया था तो उस वक्त मुझे समझाया था कि असल में ईमान और इस्लाम खुद अमन सलामती से रहने और दूसरों को अपने शर से बचाकर अमन सलामती से रखने का
नाम है। इस्लाम अमन सलामती है। बल्कि अहमद भाई, मैं ये बताना भूल गया कि हज़रत ने ये फरमाया कि अमन सलामती ईमान और इस्लाम से निकली है। ईमान और इस्लाम के बगैर ना दुनिया के किसी आदमी का खुद अमन और चैन नसीब हो सकता है, ना दुनिया को बगैर इस्लाम और ईमान के किसी से अमन सलामती नसीब हो सकती है। इस पर मैंने हज़रत से कहा भी था कि सारी दुनिया के अखबारों और टीवी पर जो खबरें आती हैं उनसे ये लगता है कि मुसलमानों ने सारी दुनिया के चैन को बर्बाद कर रखा है और वो इस्लाम और जिहाद से पूरी दुनिया को आतंकवाद दहशतगर्दी की आग में झोंक रहे हैं। मौलाना साहब ने मुझे बताया कि यह गलत प्रोपेगंडा है। कुछ जज्बाती मुसलमानों की नासमझी के बाद फैसलों से फायदा उठाकर इस्लाम मुखालिफ लोग इस्लाम और मुसलमानों की गलत तस्वीर पेश कर रहे हैं। इसके बावजूद इस्लाम दुनिया में फैल रहा है। मौलाना साहब ने चारों तरफ बैठे दसियों लोगों का मुझसे तारुफ कराया कि ये सब इन्हीं दिनों में अंधेरों से निकलकर इस्लाम के साये में रहमत आए हैं। उन्होंने कुरान पाक की आयत पढ़कर बताया कि इस आयत में अल्लाह ताला ने किसी एक आदमी की नाहक जान लेने को पूरी दुनिया का कत्ल बताया है और कुरान ने साफ ऐलान किया है, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फसाद। तर्जमा, बेशक अल्लाह बिगाड़ को पसंद नहीं करता। कुरान को मानने वाले आतंकवादी नहीं हो सकते। इस्लाम रहमत और अमन का मजहब है। मौलाना साहब ने कहा कि हम लोग तो पुश्तों से मुसलमान हैं, इसलिए पुराने मुसलमान सिर्फ नाम के और रस्मी मुसलमान हैं। जब किसी जिस्म में खून खराब हो जाए तो जिंदगी को मामूल पर लाने और सेहत को ठीक करने के लिए नए खून की जरूरत है। इस दुनिया की अमन सलामती के लिए नए खून की यानी सोच समझ कर कुरान मजीद के इस्लाम कबूल करने वाले नौ मुस्लिमों की जरूरत है। इसलिए आप लोगों पर ज्यादा जिम्मेदारी है और अल्लाह का शुक्र है नए लोग ये काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इराक और सऊदी अरब में मुसलमानों को कत्ल करने और इनसे लड़ने वाले अमरीकी फौजी मुसलमान हो रहे हैं और इन फौजियों का इस्लाम कैसा होता है इसके कुछ किस्से सुनाए। मैं ये बता रहा था कि अल्लाह का शुक्र है मैंने इस्लाम में अमन सलामती पाई। मैं इस्लाम से पहले घर के साया से महरूम था, लोगों को सताता, जंगलों में रहता, लड़ना मारना धाड़ना मेरा काम था और मुसलमान होने के बाद दुनिया के जिस घर में जाता हूँ मुझे प्यार मिलता है, लोग मेरा इकराम करते हैं। शायद मैं ऐसा मुसलमान हूँ कि इस्लाम कबूल करने के बाद मैंने कोई परेशानी नहीं झेली। मेरे हिंदू खानदान की तरफ से मेरी मुखालफत की बजाय मेरी इज्जत हुई। अब वो मेरी बात को इज्जत से सुनते हैं, मुझसे मुश्किल मामलात में मशवरा लेते हैं। मेरे अल्लाह ने मुझ बिगड़े को कैसे संवार दिया, मैं जान भी दे दूं तो इसका शुक्र अदा नहीं कर सकता। अल्लाह का शुक्र है मुझे किसी किस्म की परेशानी से दुचार होना नहीं पड़ा, क्योंकि मेरी तरबियत अच्छे आलमों के सपुर्द रही है। इस्लाम लाने के बाद मैंने जो इत्मीनान सुकून हासिल किया है उसके बारे में तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। अल्लाह ताला ने मेरे लिए नेमतों के दरवाजे खोल रखे हैं। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरी इतनी अच्छी जिंदगी हो जाएगी। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह हर मुसलमान को मेरे जैसी जिंदगी अता फरमाए। सवाल, आपकी अपने वालिदैन से मुलाकात है, आपने कभी उनको दावत नहीं दी? जवाब, अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरी अहलिया दोनों घर जाते हैं। मेरी वालदा पर इनके घर वालों का दबाव है, वरना वो अंदर से मुसलमान हो गई हैं। मैंने एक बार उनको कलमा भी पढ़वा दिया है। मेरे एक भाई हजरत के पास आते हैं, वो हजरत से बहुत मोहब्बत करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद हजरत ने उनको कलमा पढ़वा दिया। वो मंदिर बिल्कुल नहीं जाते। उनसे छोटा भाई अल्हम्दुलिल्लाह सोनीपत आया है और एक भतीजा, दोनों ने इस्लाम कबूल कर लिया। एक चिल्ले में गया हुआ है, दूसरा कुछ रोज के बाद इंशाल्लाह जमात में जाएगा। मुझे उम्मीद है कि मेरे बहुत से दोस्त भी मुसलमान हो जाएंगे। वो खुद मेरा हाल देखकर हजरत से मिलने के बड़े अच्छक मुश्ताक हैं। आप भी दुआ करें। मुझे जब भी अपने इस्लाम का ख्याल आता है मुझे अपने सारे रिश्तेदार और दोस्त याद आते हैं। मैं बहुत दिल से उनकी हिदायत के लिए दुआ करता हूँ। सवाल, आप अरमगान के जरिए मुसलमानों को कुछ पैगाम देना चाहेंगे? जवाब, हाँ, मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि इस्लाम के अंदर बहुत सुकून है और बहुत बड़ी नेमत है। जो नमाज की पाबंदी करेगा उसको ये सुकून हासिल, और जो फॉर्मेलिटी पूरी करेगा इसके लिए कुछ नहीं है। मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि हम सब मुसलमान नमाज की पाबंदी और कदर करें और इस्लाम की तरफ लोगों को बुलाएं। मालूम नहीं अल्लाह ताला किसको जरिया बनाकर कामयाबी और कामरानी का रास्ता खोल दें। सबसे ज़रूरी बात यह है कि दुनिया में अमन चैन सलामती के लिए दुनिया के लोगों को इस्लाम के साये में आना ज़रूरी है। ये कैसा अंधेर है कि लोग अमन शांति और चैन सलामती के मजहब को दहशतगर्दी समझने लगे हैं। इसमें जहाँ शैतान और शैतानी चेलों का लोगों को इस्लाम और जन्नत से दूर रखने की साजिश का दखल है, वहीं मुसलमानों के हालात भी इनकी मदद करते हैं। आप इलाके की जेलों को जाकर देखें तो ज्यादातर कैदी मुसलमान हैं, हालांकि जनसंख्या हिंदुओं की ज्यादा है। जब मैं एक दो बार मुजफ्फरनगर जेल में गया तो वहाँ ये देखकर हैरत हुई कि कैदियों में 76% मुसलमान थे, जबकि हमारे जिला में मुसलमान शायद 30 या 35% होंगे। मुसलमानों के इस अंधेरे किरदार का पर्दा बस साजिशी लोगों के सामने इस्लाम से दूर रखने के लिए लगा देते हैं। इससे दुनिया अमन से महरूम होती जा रही है। मेरी दरख्वास्त है कि हर ईमान वाले को अपना मकाम समझना चाहिए कि वो ईमान वाला और मुसलमान है, इसलिए वो जहाँ रहे इसको ये ख्याल रहना चाहिए कि वो रहमत लिल आलमीन नबी का उम्मती है। इसको अपने आप को अमन सलामती का पैगंबर समझना चाहिए। कम से कम वो जहाँ रहे लोगों को अपने शर से बचाए, दूसरों के लिए अमन सलामती की कोशिश करे। जब वो दूसरों की फिक्र करेगा तो वो खुद हर वक्त हर एक ईमान पर मौत की फिक्र करेगा। हम अगर अपने इस्लाम का मतलब समझ लें और लोगों को अस्सलामु अलैकुम का मतलब समझा देंगे,
सलाम को फैलाने का इस्लाम ने इस्लाम को फैलाने का हुक्म दिया है, तो बस इस्लाम और मुसलमानों की हकीकी तस्वीर लोगों के सामने आ जाए, इस तरफ बहुत सोचने की ज़रूरत है। इस्लाम के तो माना ही यही है कि तुम पर सलामती हो, चारों तरफ तुम पर सलामती हो, इसको फैलाने का हमारे नबी ने हुक्म दिया है। फिर इस दीन को मानने वाला कैसे जालिम हो सकता है, कैसे आतंकवादी हो सकता है? सवाल। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जवाब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुस्तफ़ात अज़माहनामा, अरमगान, मार्च 2006। सईद अहमद डॉक्टर शैलेंद्र कुमार मल्होत्रा, दिल्ली से एक चश्मकुशा मुलाकात। डॉक्टर सईद अहमद, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अहमद अव्वा, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल। डॉक्टर साहब, आप मस्कत से कब तशरीफ लाए? जवाब। मैं 3 नवंबर को मस्कत से आ गया था। असल में मेरा पहला एग्रीमेंट मुआहिदा खत्म हो गया था। वो लोग दोबारा मुझे वहाँ पर रहने के लिए इसरार कर रहे थे, मगर मैंने दरमियान ही में फिजी में एक मामला तय कर लिया था, इसलिए मुझे आना पड़ा। सवाल। 6 महीने कबल अभी ने आपके कबूल इस्लाम का वाक़या सुनाया था, इसी वक्त से आपसे मुलाकात का इश्तियाक था। अल्हम्दुलिल्लाह आज मुलाकात हो गई। असल में मैं आज आपके खिदमत में अभी के हुक्म से इंटरव्यू की गर्ज से हाजिर हुआ हूँ। जवाब। ज़रूर ज़रूर, मुझे हुक्म करें, मेरे लिए मौलाना साहब का क्या हुक्म है? सवाल। हमारे यहाँ पुल से एक दीनी दावती माहनामा अरमगान निकलता है। जवाब। हाँ हाँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह इससे वाकिफ़ हूँ। सवाल। इसके लिए आपसे एक इंटरव्यू लेना है, ताकि दावत का काम करने वालों के लिए भी मुफीद हो और मुसलमानों के लिए भी इस्लाम की कदर मंजिलत का जरिया बने। जवाब। ज़रूर, मेरे लिए खुशी की बात होगी। सवाल। बराए करम आप अपना तारुफ कराएं। जवाब। मेरी पैदाइश 7 नवंबर 1954 को एक मशहूर मल्होत्रा ख़ानदान में हुई। हमारे ख़ानदान असल में 1947 में पाकिस्तान से हिंदुस्तान आया था। सरगोदा हमारा आबाई वतन था। तबादला आबादी में सख्त मराहिल से गुजरने की वजह से हमारे खानदान में बड़ा तासुब पाया जाता है। हमारे खानदान के अक्सर लोग मुझे छोड़कर RSS और BJP से जुड़े हुए हैं। एक बड़े लीडर BJP के मेरे चचाजाद भाई हैं। दिल्ली में करोल बाग में हमारा घर है। इब्तदाई तालीम मकामी स्कूल में हासिल करने के बाद मेरा दाखिला सेंट स्टीफन कॉलेज में हो गया। वहीं से मैंने BSc किया और फिर केमिस्ट्री में MSc किया। मुझे हमेशा तालीमी लाइन पसंद थी। मेरे वालिद तो ज़िंदगी भर टीचिंग लाइन से वाबस्ता रहे। इसके बाद मेरा सिलेक्शन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में PhD के लिए हो गया। वहाँ पर मुझे मुलाजमत भी मिल गई। 6 साल दौरान मुलाजमत में मैंने एजुकेशन में डॉक्टरेट D.Ed भी मुकम्मल कर लिया। वालिदैन की बीमारी और इनके इसरार पर मुझे हिंदुस्तान आना पड़ा। मुझे इंग्लैंड में दुनियावी ज़िंदगी के लिए बड़े अच्छे मौके थे, मगर शायद अल्लाह को मुझे हिदायत से नवाजना था, इसलिए मैं ना चाहते हुए भी हिंदुस्तान आ गया। तकरीबन 2 साल में वालिदैन की बीमारी की वजह से तकरीबन अस्पतालों ही में रहा। आखिरी दर्जा की वजह इलाज की कोशिशों के बावजूद मौत ने अपनी सच्चाई मनवाई और 13 अक्टूबर 1999 में मेरे वालिद का इंतकाल हो गया और इनके 9 रोज़ बाद मेरी माँ भी मुझे छोड़कर इनके पास चली गई। आजकल नए माशरे में बूढ़े वालिदैन को बोझ समझने का आम रिवाज है। हमारे यहाँ तो शायद यूरोप से भी बुरा हाल है। बूढ़े वालिदैन के लिए बस दुनिया ही में दोज़ख है। मेरे अल्लाह का शुक्र है कि मुझे अपने वालिदैन से हद दर्जा मोहब्बत थी, मुझे उनकी खिदमत का मौका मिला। आखिरी बीमारी में तो मेरा हाल देख कर लोग हैरत करते थे। इस ताल्लुक की वजह से मुझे इनके इंतकाल का बहुत सदमा हुआ और मैंने संन्यास लेने की सोची। मैं 2 साल इसी ख्याल से हरिद्वार और ऋषिकेश के आश्रमों में रहा। एक के बाद एक आश्रम बदलता रहा और शांति और सुकून की तलाश करता रहा, मगर मुझे ये महसूस हुआ कि यहाँ पर बस धर्म के नाम पर धंधा का एक बाजार है। इन लोगों को छोड़कर जो दुनिया की बेचैनी से तंग आकर सब कुछ छोड़कर शांति और सुकून की तलाश में यहाँ भटक रहे हैं। हर आदमी और हर गुरु का कुछ निशाना है और सिर्फ लोगों को अपना मोतकद मानना बनाना और इनसे अपना उल्लू सीधा करना है। मुझे ख्याल हुआ कि यहाँ से अच्छा ये है कि मैं समाजी दुनिया में जाकर अपनी सलाहियत से लोगों को फ़ायदा पहुँचाऊँ। 2 साल की इस मुद्दत में मुझे अपने मज़हब से बड़ी मायूसी हुई। मैं दिल्ली आ गया। मैं एक रोज़ सेमिनार में शरीक हुआ जो हिंदुस्तानी समाज की तालीमी पसमानगी और इसका हल के उन्वान से वजारत फलाह और बहबूद इंसानी के तहत किया जा रहा था, जहाँ पर जनाब स्वामी कल्याण वायुजी मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद थे। मेरे एक दोस्त ने इनसे मेरा तारुफ कराया और मेरी तालीम के मैदान में कुछ खिदमत करने का इजहार किया। स्वामी जी की और इनके ट्रस्ट की तालीमी खिदमत का भी उन्होंने मुझसे तारुफ कराया। अगले रोज़ सुबह को पंडार पार्क में एक वजीर की कोठी पर हमारी मुलाकात तय हो गई और 2 घंटे की मुलाकात के बाद मैंने स्वामी जी और उनके ट्रस्ट से वाबस्ता होने का फैसला कर लिया। इनके साथ जुड़कर मैं इनकी ज़ाती ज़िंदगी और उसूल पसंदी से बहुत मुतासिर हुआ
اور سماج میں رہ کر اس کی فکر کرنا، تعلیمی پسماندگی دور کرنے کے سلسلہ میں فکر مندی میرے مزاج کے بہت قریب لگی، مگر ٹرسٹ میں ان کے کارندوں کی آپسی سیاست میرے لیے وہاں بھی گھٹن کا باعث رہی۔ اس کے علاوہ جب میں تنہائی میں بیٹھ کر ان سے مذہب اور خدا کے بارے میں بات کرتا تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ اتنے بڑے گرو ہونے کے باوجود جیسے کسی سچ کی تلاش میں ابھی غیر مطمئن اور پیاسے ہیں۔ جب بھی ان سے خدا اور مذہب کے بارے میں بات ہوتی مجھے اس بات کا احساس اور زیادہ ہو جاتا کہ ان کے ٹرسٹ کے ایک ذمہ دار سے مجھے بالکل مناسبت نہیں ہو پائی، جن کی ان کے ہاں بہت زیادہ اہمیت تھی۔ اس خیال سے مجھے ان کے کام میں انتشار کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے، میں نے وہ ٹرسٹ چھوڑ دیا اور 1998 میں دلی پبلک اسکول سے وابستہ ہو گیا۔ پہلے میں ایک برانچ میں پرنسپل رہا، پھر اس کے بعد مجھے ایڈوائزر کی پوسٹ پر اسٹار کر کے مقرر کیا گیا۔ اس دوران اللہ کی رحمت نے مجھ پر ترس کھایا اور میرے مشرف با اسلام ہونے کا واقعہ پیش آیا اور مجھے آپ کے والد صاحب نے کچھ روز کے لیے گلف خلیج میں جانے کا مشورہ دیا۔ میں 3 سال کے معاہدے کے تحت مسقط چلا گیا، وہاں میں اپنا معاہدہ الحمدللہ عزت کے ساتھ اور خوش اسلوبی کے ساتھ مکمل کر کے آیا ہوں اور اگلے ہفتے واپس جا رہا ہوں۔ بس یہ میرا تعارف ہے۔